Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. Today we will learn chapter number 3, Government. In this chapter, first of all, we will come to know that what is government, and afterward the functions of the government. One by one we will see the different function of the government. Among them, few functions are maintenance of law and order, finance and tax collection, means here from where the government get the money through taxes, and finance means different way of income. Next, security and defense means through government the citizen is secure, means safe, ensuring welfare of people, to do the welfare work for the people, and ensuring justice and to provide justice. So these are the main function. And another topic is organ of the government. How many organs are there? There are mainly 3 organs: legislature, executive and judiciary. So 3 bodies also we can say, and 3 bodies have different work. In this way the government run through these 3 bodies. And we have also seen, or we will see, the different level of the government also. So government run at different level. They are center government, that is first level, state government, that is second level, and the local self government, that is third level. So in this way we will learn about government. Now let us start our reading. Chapter 3, Government. Have you ever wondered what it would be like if there were no rules or laws? All reason in a country need proper administration to develop. तो यहाँ पे कहा है कि अगर जहाँ पर हम रहते हैं या कंट्री या स्टेट, वहाँ पे कोई रूल्स या रेगुलेशंस, लॉ अगर नहीं हो तो क्या होगा? तो ऐसे समय में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की ज़रूरत होती है, प्रशासन को डेवलप करने की ज़रूरत होती है. The government of a country is the group of people who are responsible for governing it. तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या होता है ये बताते हुए कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मतलब कि जो देश या स्टेट को चलाने की उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट. A government determines the way in which a country, state, city or village is administrated. और गवर्नमेंट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो नक्की करती है, डिटरमाइन मतलब फाइनल करती है, डिसाइड करती है कुछ तरीके
कंट्री को, स्टेट को, सिटी को, विलेज को चलाने के लिए। उसको हम कह सकते हैं गवर्नमेंट। एट ईच लेवल द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट लॉ दैट द सिटीजन हैव टू फॉलो एंड क्रिएट policies about everything connected with the daily life of a community। और इस तरह से गवर्नमेंट है हर एक लेवल पर, यानी कि सेंट्रल लेवल पर, यानी कि यूनियन लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, वो जो है कुछ बनाती है रूल्स और उसको वो अप्लाई करती है, और उस रूल्स और रेगुलेशन को सिटीज़न को फॉलो करना पड़ता है। कुछ पॉलिसीज़ बनाती है जो उनके डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट होती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट है वो सिटीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड दोज कंडीशन which will help citizens of a country to make the best of their potential and realize their dream। और एक सिटीज़न को अच्छी तरह से अपने आप को अच्छे से अच्छा सिटीज़न प्रूफ करने के लिए जो उसमें क्षमता है वो बताने के लिए अच्छी से अच्छी उनके लिए जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। बेस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल एंड रियलाइज देयर ड्रीम। तो इस तरह से उनको प्रोवाइड करना चाहिए इस तरह की रूल्स एंड फैसिलिटीज़। दिस मीन्स दैट द टास्क ऑफ मेकिंग एंड implementing law and providing the city, state and nation with the proper facility to function and develop is the responsibility of the government। तो इस तरह से लास्ट में ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हुए कहते हैं कि उनको इस तरह के लॉ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे स्टेट नेशन है वो अच्छे से डेवलप हो सके, उसके ऊपर वो काम कर सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिटीज़न का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। Administering an area is the basic function of the government. This means that it has to perform many different kinds of functions. To do this, it develops an elaborate system. Maintaining law and order, providing facilities, collecting taxes and revenues, defense of the country, and regulating its relations with other countries of the world all fall within the responsibilities of the government. It also provides healthcare facilities and constructs houses and buildings for people. The government also plays a crucial role in understanding the fast-changing world and takes decisions about the policies to be followed to adapt to these changes. Next paragraph, functions of government. The government performs many different functions and develops an elaborate system to do so. Its major functions are, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है यानी कि लागू करती है कंट्री में और उसको डेवलप करती है, विकसित करती है, तो ये बताया है। तो फर्स्ट है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कायदा कानून को मेंटेन करना यानी बनाए रखना। जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है उसको लागू करती है, उसको बनाए रखती है, और उसको कोई ब्रेक करता है तो उसको पनिश भी करती है। पॉइंट नंबर 2, प्रोटेक्टिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो हमारे कंट्री की जो बाउंड्री होती है
दूसरे देशों के साथ जो जुड़ी हुई होती है बाउंड्री, सीमाएं जिसको हम कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना। नंबर 3, कंडक्टिंग फॉरेन पॉलिसी फॉर पीसफुल रिलेशन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह से बाउंड्री को प्रोटेक्ट करती है तो फॉरेन के साथ ऐसी पॉलिसी यानी कि नीति बनाती है जिससे दूसरे देशों के साथ हमारा रिलेशन शांतिमय बना रहे, शांतिपूर्ण बना रहे। तो इस तरह से फॉरेन पॉलिसी भी बनाती है। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू ऑल इट्स सिटीज़न। इस तरह से कंट्री में रेलवे है, पोस्ट की सुविधा है, हाउसिंग यानी कि लोगों को रहने की सुविधा, हेल्थ केयर उनके स्वास्थ्य की सुविधा, एजुकेशन यानी पढ़ाई। तो ये जो मुख्य हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति को चाहिए होती है, वो सारी सुविधाएं जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है कलेक्टिंग टैक्स एंड रेवेन्यू। तो जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है, रोड बनाती है या फिर हम कह सकते हैं स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस की सुविधाएं, तो ये सारा जो हमारे लिए खर्च करती है, तो वो खर्च उनको कहाँ से मिलता है? तो हमारे इनकम टैक्स है या हमारा सेल टैक्स है या हमारे पर कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, उस टैक्स से वो अमाउंट कलेक्ट करते हैं और फिर उस अमाउंट से हमारे लिए वेलफेयर यानी कि अच्छे देश के व्यक्तियों के लिए अच्छे से काम किए जाते हैं। तो टैक्स को कलेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग सिटीज़न फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजिंग डिजास्टर। कोई कुदरती आफत आ जाती है जैसे कि फ्लड हुआ या भूकंप हुआ या सूखा हो जाना, अकाल पड़ जाना, तो उस नेचुरल डिजास्टर को में से लोगों को प्रोटेक्ट करना, और जब नेचुरल डिजास्टर होता है उस समय मैनेज करना, सारे लोगों को उस तकलीफ़ में से बाहर कैसे निकाला जाए, उसका पूरा मैनेज करके उस डिजास्टर में से लोगों को बचाना। रिसॉल्विंग इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स इन केस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से कभी कभी दो स्टेट के बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़े होते हैं कोई भी मैटर को लेकर, तो ऐसे समय में उस झगड़े को भी निपटाना। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या? एक कंट्री के अंदर जो स्टेट्स होते हैं वो सारे कंट्री के अंडर में ही होते हैं और वो एक ही होते हैं, मगर फिर हर एक स्टेट अपना अपना डिसीज़न भी लेती है, सबका अपना अपना डिसीज़न भी होता है। तो इस तरह की हम गवर्नमेंट देखते हैं, उसको फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कभी कोई स्टेट के बीच में झगड़ा होता है तो ऐसे में उस झगड़े को सॉल्व करना ये भी गवर्नमेंट का काम है। सो इन दिस वे वी हैव सीन द function of the government. In the next paragraph also we will see the function of the government. The government provide facilities and institution to maintain law and order. तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर की तो हमने बात कर ही ली है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। इट इस्टेब्लिश एजेंसी फॉर फैसिलिटीज़ कलेक्टिंग टैक्सेस एंड रेवेन्यू, तो टैक्स को कलेक्ट करना ये भी देखा। इट मेंटेन द आर्म्ड फोर्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड रेगुलेट इट्स रिलेशन विथ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आर्म्ड फोर्स यानी कि ऐसी फोर्स जो वेपन्स के साथ लड़ती है उसको कहते हैं आर्म्ड फोर्स। तो वो भी हमने देखा कि
कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है डिफेंस को कंट्रोल करना या डिफेंस है वो एक्टिवेट करना कंट्री में। इस तरह से all these are the responsibility of the government. It also provide health care facilities, construction houses, building for people. The government also play a crucial role in understanding the fast changing world and take decision about the policy to be followed to adapt to these changes। और लास्ट में ये बताया कि गवर्नमेंट को जो है वर्ल्ड में कुछ नया नया बदलाव जो आ रहा है उसको हमेशा ध्यान में रखकर ऐसे डिसीज़न लेने चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि जो देश का और अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से गवर्नमेंट के फंक्शन देखे हमने।